Hello everyone. Welcome to the lecture series of Design and Analysis of Algorithms. In the last video, we have learned about the minimum spanning tree. In this video, we will be learning about the algorithm to find the minimum spanning tree. So let's begin. So now we begin with the Kruskal's algorithm first. Now Kruskal's algorithm says कि जब हमें minimum spanning tree draw करनी है, so the first step is आप जितने भी edge weights हैं उनको sort कर लो on the basis of their weight. Once आपने जितने भी edges हैं उनको sort कर लिया on the basis of their weight, तो एक एक करके आप edge को pick करो और उसको अपनी tree में add करते जाओ. But provided कि जो भी हमारा edge है वो किसी भी stage पे cycle ना form करे या closed loop ना form करे. If it is forming a cycle or a loop, then we will not select that edge and move on with the next edge in our list. So इसको example से समझते हैं. Let's take an example. Suppose हमें यहाँ पे ये graph given है and according to the first step हमने जितने भी edge weights हैं उनको sort कर दिया on the basis of our weight. तो ये हमारी sorted list आ गई यहाँ पे. Then one by one we will select the edge. तो सबसे पहले according to our list the edge is CF. So edge हमने CF add कर दिया. Adding this अभी हमने start ही किया. It is not forming a cycle. So we can go on with the next edge. Edge GI. Edge weight is 2. Edge EC. Now we can see over here कि हमारे पास दो edges हैं जिनका weight same है, that is 3. Now आइदर ऑफ या तो हम एक को सेलेक्ट कर सकते हैं या हम दोनों को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड कि वो साइकिल ना फॉर्म करे. सो फ्रॉम दिस वी कैन सी कि एक ग्राफ के लिए एक से ज्यादा मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज भी पॉसिबल है इन द केस जहां पे एज वेट्स सेम हो. राइट, सो वी सेलेक्ट फर्स्ट एज EC. एज वेट इज 3. अब हमने अगर एज EF को भी सेलेक्ट कर लिया, वी कैन सी कि यहाँ पे क्लोज साइकिल बन जाएगी बिटवीन C, E एंड F एंड दैट इज नॉट अलाउड इन आवर ट्री. सो वी रिजेक्ट दिस एज. द नेक्स्ट एज इज एज DH. edge weight is 5. Now next is edge ED. Edge ED, again adding edge ED is not creating a cycle, so we can add this edge ED which edge weight 6. Now again ED के साथ साथ FH का भी edge weight is 6 only. But now if I add FH to my tree, then adding this क्या form कर देगा, एक cycle, closed loop बन जाएगा between these vertices. So we will reject this. Next is edge BD. Edge BD. Edge weight 8. Now edge DG, which also has edge weight 8. Now we can see अब तक हमारे पास जितने भी edge weights थे जिनका edge weight same था, इन दैट केस सिर्फ एक ही सेलेक्ट हो पा रहा था क्योंकि दोनों को सेलेक्ट करने से इट वॉज फॉर्मिंग अ साइकिल. बट फॉर दिस केस वी कैन सी कि हमने एज D8 को भी ऐड कर लिया एंड एज DG को भी ऐड कर लिया एंड दोनों का एज वेट इज सेम. नाउ नेक्स्ट इज एज GH. नाउ अगेन इफ आई ऐड एज GH टू माई ग्राफ वी कैन सी इट विल क्रिएट अ साइकिल, so reject this. Then edge BC. Again if I add edge BC, again it will create a cycle, so we reject this. And then we have edge AB with edge weight 10. Right? So जितने भी vertices हैं क्या हमारे सारे vertices include हो गए ट्री में, A B C D E F G H I. So we can see सारे vertices create हमारी tree में add हो गए हैं. So it is a spanning tree. Now there was one property that we have seen in the last video. So यहाँ पे हमारे number of vertices कितने हैं? We have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vertices, right? And in a tree, if there are n vertices, then the number of edges will be n minus 1. So let's see how many edges we have got in a spanning tree. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So we have edges as 8, which is n minus 1. So the property of the tree is also getting satisfied. Now in order to find the cost of this spanning tree, of this minimum spanning tree, we can do the summation of all the edge weights जो हमें ट्री में मिले हैं. So we 10 plus 8 plus 6 plus 3 plus 1 plus 8 plus 5 and plus 2. So this is the cost of my minimum spanning tree. So this is one way of drawing the tree. अगर हमने इंस्टेड ऑफ जो यहाँ पे भी हमारे एज वेट सेम थे, सो इंस्टेड ऑफ द वन विच आई हैव पिक्ड, अगर आप कोई दूसरा भी पिक करते हो देन दैट इज ऑल्सो फाइन. जो हमारा मिनिमम कॉस्ट रहेगी उससे वो सेम ही रहेगी. ट्री विल डिफर बट द कॉस्ट विल रिमेन द सेम. So you can see I have drawn another minimum spanning tree over here by considering the different edge that we have selected from in this tree. So एक से ज़्यादा minimum spanning trees भी possible है if the edge weights are same. So we can see जो हमारी इस spanning tree है इसमें भी number of vertices आपके उतने ही रहेंगे, edges उतने भी रहेंगे और cost भी उतनी ही रहेगी, सिर्फ tree हमारा differ करेगा. So this is how we draw a minimum spanning tree using the Kruskal's algorithm. Now before finding the or proving the optimality of the Kruskal's algorithm, हमें एक property और देखनी है that is known as the cut property which will be used in the proof. तो पहले समझते हैं what do we mean by the cut property. Now cut property कहती है कि जो भी आपका ग्राफ है उसमें आप vertices को दो partitions में divide कर दो such that दोनों पार्टीशन जो है वो आपस में डिसजॉइंट रहे. राइट. सो कट का क्या मतलब है, हम कैसे भी इन दोनों किसी भी वे में अपने वर्टेक्स सेट को पार्टीशन कर सकते हैं इनटू टू डिफरेंट सेट. राइट. तो मेरा एंटायर वर्टेक्स सेट अगर V है जिसमें हमारे पास सारे वर्टिसेस हैं A, B, C, D, E, F, G, H and I. I have 9 vertices in my vertex list. इस V को हमें दो पार्टीशंस में डिवाइड कर देना है. ठीक है. लेट्स से हमने पहला पार्टीशन लिया as this. तो पहले पार्टीशन में हमारे पास वर्टिसेस हैं D, E, C, F, H and G. अगेन किसी भी वे में हम इसको पार्टीशन कर सकते हैं. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. और दूसरे जो हमारे वर्टिसेस हैं वो आ गए V माइनस S में. तो दूसरे पार्टीशन में हमारे पास है A, B, and I. Right. So A, B and I. लेट्स से ये वाला जो फर्स्ट पार्टीशन हमें मिला है इसको हम नेम कर देते हैं S. तो और V क्या है, V में हमारे सारे वर्टिसेस थे, S में हमने एक पार्टीशन के वर्टिसेस कर लिए, तो हमारे पास जो V माइनस S बचा उसमें रिमेनिंग वर्टिसेस बचे. राइट. सो दिस इज नोन एज अ कट. कट मीन्स पार्टीशन योर वर्टिसेस इनटू टू डिफरेंट सेट्स S एंड V माइनस S सच दैट जो दोनों सेट्स हैं आपस में डिसजॉइंट हो. दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए. एक वर्टेक्स एक ही सेट का पार्ट रहेगा. राइट. सो दिस इज हाउ वी फॉर्म अ कट. दिस इज नोन एज अ कट. नाउ द नेक्स्ट टर्म इट सेज क्रॉसिंग अ कट. क्रॉसिंग अ कट का क्या मतलब है, वो वाले एजेस जिनमें से एक वर्टेक्स तो आपका एक सेट में हो और दूसरा वर्टेक्स जो है वो दूसरे सेट में हो.
अगर हमें ऐसे एजेस मिलते हैं, उन एजेस को हम कहते हैं दे आर क्रॉसिंग अ कट। सो लेट्स सी, जो हमने पार्टीशन क्रिएट किया है यहाँ पे, उसमें हमारे पास कौन से एजेस हैं जो कट फॉर्म कर रहे हैं। सो वी कैन सी वर्टेक्स बी जो है वो सेट V माइनस एस में है, वर्टेक्स डी जो है वो सेट S में है, बट और इनका जो बीच का कॉमन एज है ये BD, यानी कि एक वर्टेक्स इसका एक सेट में है, दूसरा वर्टेक्स दूसरे सेट में है। सो दिस एज इज क्रॉसिंग अ कट। सिमिलरली edge BC, B is in one set which is V minus S, C is in another set which is S, so again this edge is crossing a cut. Similarly AC, A is in one set V minus S, C is in set S, so this edge is crossing a cut जिसका एक वर्टेक्स एक सेट में, दूसरा वर्टेक्स दूसरे सेट में। अब अगर हम ये वाले एजेस देखें CE, C और E दोनों ही एक सेट में है, so this edge is not crossing a cut. D और E अगेन दोनों वर्टेक्स एक ही सेट में है, दिस इज ऑल्सो नॉट क्रॉसिंग अ कट। CF में भी दोनों वर्टेक्सेस सेम ही वर्टेक्स सेम ही सेट का पार्ट है। EF इसमें भी दोनों वर्टेक्सेस सेम ही सेट का पार्ट है। DH इसमें भी दोनों वर्टेक्सेस सेम सेट का पार्ट है। FH इसमें भी दोनों वर्टेक्सेस सेम सेट का पार्ट है। एंड GH ये भी दोनों वर्टेक्सेस सेम सेट का पार्ट है। बट फॉर दिस एज G एंड I, G is in one set, I is in another set. So this edge is also crossing a cut. Similarly HI, H is in one set, I is in another set. Again this edge is crossing a cut. So cut means कि आप entire vertex set को partition कर लो into two disjoint sets, and crossing a cut means वो वाले edges जिनका एक vertex एक set में हो and दूसरा vertex दूसरे set में हो, then we say that edge is crossing a cut. Now this was one way of partitioning it. हम चाहे तो एक दूसरा पार्टीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। सो द ओनली कंडीशन इज कि जो दोनों सेट्स हैं वो आपस में डिसजॉइंट होने चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप उसे कैसे भी पार्टीशन करो। तो हो सकता है हम एक पार्टीशन हो सकता है ऐसे ले लेते ABC E एंड D, और दूसरा पार्टीशन हो गया GH F एंड I. सो नाउ सो दिस इज माई कट। So now let's see हम यहाँ पे हमारे कौन से एजेस हैं जो कट को क्रॉस कर रहे हैं। So एज DH DG, दिस इज क्रॉसिंग अ कट, D एक सेट में है, G एक सेट में है। एज DH क्रॉसिंग अ कट, एज D is in one set, H is in another set. EF क्रॉसिंग अ कट, E is in one set, F is in another set. So only these three are the vertices which are crossing a cut. So this is known as cut and crossing a cut. Now let's see what do we mean by the cut property. Now cut property says कि जब आपने अपने इंटायर वर्टेक्स को सेट को दो पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया इनटू टू नॉन एम्प्टी सेट्स S एंड V माइनस S, तो जितने भी एजेस कट को क्रॉस कर रहे हैं उन सारे एजेस में से जो भी मिनिमम कॉस्ट एज होगा वो हर एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री का पार्ट होगा ही होगा। सो द कट प्रॉपर्टी सेज V is partitioned into two non-empty sets S and V minus S, and let edge which is between vertex V and vertex W. So this is the notation to express the edge. Then the minimum cost edge where V belongs to S and the other vertex of this edge is belonging to another set, this minimum cost edge will be part of every minimum spanning tree. So now what do we mean by this is, now let's go back to our example. अब जो हमने यहाँ पे कट क्रिएट किया है, हमने देख लिया कट क्या होता है, हमने देख लिया क्रॉसिंग का कट क्या होता है। अब जो भी एजेस यहाँ पे हमारे कट को क्रॉस कर रहे हैं उनमें से जो मिनिमम कॉस्ट एज है वो हर एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री का पार्ट होगा ही होगा। तो मिनिमम कॉस्ट मिनिमम एजेस हम देखते हैं, हमारे ये वाला एज था जो कट को क्रॉस कर रहा है जिसका वेट है 8, ये वाला एज है जो कट को क्रॉस कर रहा है जिसका वेट है 9, ये वाला एज है जो कट को क्रॉस कर रहा है जिसका वेट है 12,
ये वाला एज है जो कट को क्रॉस कर रहा है जिसका वेट है 2, एंड ये वाला एज है जो कट को क्रॉस कर रहा है जिसका वेट है 1. सो आउट ऑफ ऑल दीज 1, 2, 8, 9 and 12, out of all the edge weights of those edges which are crossing a cut, which is minimum? So we can see edge weight. So this is not 1, this is 11. This weight is 11. So out of 11, 2, 8, 9 and 12, which is minimum? 2 is minimum. So this edge which is between vertex G and vertex I and crossing a cut, this edge will be part of every minimum spanning tree. So this is what the cut property says कि जो भी edges कट को क्रॉस कर रहे हैं उनमें से मिनिमम कॉस्ट एज हर एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री का पार्ट होगा ही होगा. Similarly, if we go back to this example, we can see यहाँ पे ये 3 edges हैं जो कट को क्रॉस कर रहे हैं. मिनिमम एज वेट कौन सा है इसमें से? 3. So this edge will be part of every minimum spanning tree, right? So this is what the cut property says. Now provided कि जो भी मिनिमम कॉस्ट एज है वो यूनिक है. अगर हमें ऐसे एक से ज्यादा एज मिल जाते हैं जिनका वेट सेम है, देन वी कैन नॉट गारंटी इट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे GI का भी वेट 2 है और अगर HI का भी वेट 2 होता और दोनों ही एजेस कट को क्रॉस कर रहे हैं, देन वी कैन नॉट से दैट दिस विल बी वैलिड. ये उसी केस में वैलिड होगा जहाँ पे एज वेट्स जो है वो डिस्टिंक्ट है. तो दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड इन दी cut property, that if V is partitioned into two non-empty sets S and V minus S, and if E is the minimum cost edge which is crossing a cut with one vertex in one set and another vertex in another set, then this edge will be part of every minimum spanning tree, provided no two edge weights are same. Now let's prove our cut property. Let's say कि हम कैसे कह सकते हैं that this will always hold true. सो द क्लेम इज, हम कह रहे हैं कि जो मिनिमम कॉस्ट एज ई होगा वो हर एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री का पार्ट होगा ही होगा. सो इसको कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करते हैं. लेट्स से हमारे पास एक स्पैनिंग ट्री है टी जिसमें ये जो मिनिमम कॉस्ट एज है ये इंक्लूडेड है. लेट्स से कि हमारे पास एक दूसरी स्पैनिंग ट्री है टी डैश जिसमें हम इस एज वेट मिनिमम कॉस्ट एज वेट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, राइट? सो बेसिकली हमें ये शो करना है कि जो टी डैश की कॉस्ट होगी वो टी की कॉस्ट से ज़्यादा होगी. इट कैन नॉट बी मिनिमम दैन टी. देन वी कैन से दैट द कट प्रॉपर्टी इज होल्ड्स इन आवर केस. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सपोज हमने यहाँ पे कोई ट्री एज्यूम करी ऑन द बेसिस ऑफ एनी ग्राफ, राइट? सो हमने कोई इंटरमीडिएट स्टेज बना ली ट्री की ऑन द बेसिस ऑफ सम ग्राफ विच इज गिवन. अब यहाँ पे हमने अपने वर्टेक्स सेट को 2 पार्टीशंस में डिवाइड कर लिया है. यू कैन सी, सो दिस एंटायर सेट, दिस इज वन सेट and we name it as S, and the other one, this is another set which is formed of all the remaining vertices that are left. So this is S and this is V minus S. Now कौन कौन से एजेस हैं जो हमारे कट को क्रॉस कर रहे हैं? सो इन द इनिशियल ग्राफ जो हमें गिवन था उसमें ये 3 एजेस हैं जो कट को क्रॉस कर रहे हैं. दिस एज, this edge which is between vertex V dash and W dash, we call it E dash. Another edge which is between vertex V and vertex W, we call it E. And another edge which is between vertex V dash and H, we call it E dash, right? Now जो out of all these 3 edges जो edge E है उसकी कॉस्ट इज मिनिमम. नाउ दिस इज गिवन, एच ई की जो कॉस्ट है वो मिनिमम है.
ठीक है। सो अब हमारी मिनिमम स्पैनिंग ट्री ने इस एज ई को इंक्लूड कर लिया अपने वर्टेक्स सेट में, राइट। सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री ने एज ई को इंक्लूड कर लिया। सो हम बाकी के जो एजेस का कनेक्शन है उसको रिमूव कर देते हैं। Right? Now let's come to another tree which is formed by removing this edge E. यही हमने claim contradiction में देखा था कि हम एक T dash spanning tree बनाते हैं जिसमें हम edge E को include नहीं कर रहे। So हमने एक दूसरी spanning tree create करी। Let's call this as T dash. Let's remove these edges. Okay, so this is our spanning tree T dash. अब T dash में अगर हम इस एज E को इंक्लूड नहीं कर रहे जो हमने T में किया था, तो नेचुरली अगर हमें इन दोनों सेट्स को आपस में कनेक्ट करना है, अगर हम एज E से नहीं कर रहे तो हम किसी दूसरे एज से करेंगे, राइट। सो दैट मीन्स हम स्पैनिंग ट्री का क्या मतलब होता है कि हम हर एक वर्टेक्स तक किसी ना किसी पाथ तक पहुंच जाए। अगर इस V को W से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एज E डायरेक्ट एज था, उस एज को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम, सो नेचुरली इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कोई दूसरा वे होगा, कोई दूसरा एज होगा, राइट। सो लेट्स से हम इन दोनों V और W को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक दूसरा एज ले लेते हैं विच इज एज E डैश, राइट। सो T डैश में हमने एज E को हटा दिया एंड इंस्टेड ऑफ दैट हमने एज E डैश को वहां पे ऐड कर दिया। सो बेसिकली T डैश में हमने एक्सचेंज कर दिया है एज E को विद एज E डैश, द रेस्ट ऑल ऑफ इट रिमेन सेम। तो एज E को E डैश से रिप्लेस करने के लिए जितने भी हमारे बाकी के एजेस या वर्टिसेस थे उनको हमने कुछ नहीं छेड़ा है, दे रिमेन्स कनेक्टेड इन द वे एज दे वर कनेक्टेड बिफोर, राइट। सो व्हाट वी कैन सी ओवर हियर इज कि T डैश स्पैनिंग ट्री में जब हमने रिप्लेस कर दिया एज E डैश को विद एज E, सो नाउ V से W तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक दूसरा पाथ है दैट इज गोइंग वाया V डैश एंड वाया W डैश, राइट। पहले हमें डायरेक्ट एज मिल रहा था, अब हम V से W तक किसी दूसरे पाथ से पहुंच पा रहे हैं। नाउ वी कैन सी कि जो कॉस्ट ऑफ E डैश है वो ग्रेटर है देन कॉस्ट ऑफ E। ये हमने देखा था अपनी स्पैनिंग ट्री में, हमने ये लिया था कि जो एज E है वो मिनिमम एज है, कॉस्ट एज है जो कट को क्रॉस कर रहे हैं। तो T स्पैनिंग ट्री में तो हमने उस एज को इंक्लूड कर लिया, T डैश स्पैनिंग ट्री में हमने एज E को रिप्लेस कर दिया विद अनदर एज E डैश, और उस एज की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है कॉस्ट E से। नाउ इफ the cost of this edge E dash is greater than the cost of E, so what we can say, it is ultimately increasing the cost of my spanning tree. So जो T dash spanning tree है उसकी cost ज़्यादा हो गई than the cost of the spanning tree T, which is this one, right? So इससे हम क्या conclude कर सकते हैं कि जो T डैश हमारी स्पैनिंग ट्री है इट हैज़ अ वेट हायर देन दैट ऑफ T. सो दैट मीन्स इफ वी आर नॉट इंक्लूडिंग द मिनिमम कॉस्ट एज इन आवर स्पैनिंग ट्री then it will give us a tree that will have a higher cost. So we can say T dash is not the minimum spanning tree. So we can conclude कि हर एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री में जो मिनिमम कॉस्ट एज होगा
दैट इज जो कट को क्रॉस कर रहा होगा विद वन वर्टेक्स इन वन सेट एंड अनदर वर्टेक्स इन अनदर सेट, दैट एज मस्ट बी पार्ट ऑफ एवरी मिनिमम स्पैनिंग ट्री. So this is what the cut property says. Now in the next video we will discuss the optimality of the Kruskal's algorithm using the cut property. If you like my video, then do like and share my videos and subscribe my channel.